Okay, now मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल सेल्स, मल्टीकास्ट का मतलब समझो, अच्छा से समझो। सो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, these are the three terms you have to learn very carefully. Unicast, multicast and broadcast, that you have to learn very carefully. So unicast means source and destination is same, single, that is unicast. And that is actually doing, that is actually calculating the exact path, that is actually calculating the exact path between two nodes, exact path between two nodes, that is unicast. What multicast means? Multicast means there are multiple destinations. Very carefully you have to understand. There are multiple destinations. Source is same, but multiple destinations are there. That is multicast. So here we have to consider that कि एक ही नोड हो सकता है, एक ही पर्टिकुलर नोड से जब डेटा सेंड कर रहा है, हो सकता है 4 पर्सन को मुझे सेंड करना है, नॉट ऑल. दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट. And what broadcast means? Broadcast means I have to send the data to everyone within the network. So इस नेटवर्क के अंदर सबको भेजना है. This is called broadcast. सबको भेजना है. Just 1 minute, okay? Okay, and broadcast means, please everyone again concentrate. Broadcast means simply unicast हो गया, एक पर्टिकुलर सोर्स एक डेस्टिनेशन. मल्टीकास्ट मीन्स एक सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन. एक ब्रॉडकास्ट मीन्स सिंगल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन, all terminals are the destination. This is called broadcast. So unicast, multicast, unicast routing protocol हम लोग पढ़ चुके हैं. That is appropriate path it will create, and after that it will again send the data. और multicast में क्या होगा? Simply try to understand again here. This is unicast. This is unicast. We have already done. This is given already. This is unicast. This is unicast. And here it is multicast. See. So unicasting router forward the receive packet through only one of its interfaces. That means कोई एक interface पे ही भेजेगा. This is unicast. It is saying, it is giving the path, appropriate path it will sending. This is unicast. This is multicast. देखो ये एक पैकेट जहां जहां G1 एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज G1 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 G1, दिस इज जहां जहां G1 एग्जिस्ट कर रहा है वहां ये डेटा सेंड होगा. इधर G1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इधर सेंड नहीं होगा. So that is the thing called multicast, multiple destination. In multicasting, the router may forward the received packet through several of its interfaces. That means 2-3 इंटरफेस में ये डेटा सेंड करेगा. Now this is multicasting. Now here multicasting versus multiple unicasting. See that very carefully. Interesting thing. This is multicasting, same packet सब जगह जा रहा है. This is multicasting. This is multiple unicasting. That means यह 4 तो पैकेट भेजा है, लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, इधर 2. तो ये 4-5 पैकेट जो भी भेजा है, एक यहाँ पे भेजा है पाथ सिंगल,
एक पैकेट यहाँ पे भेजा है, एक पैकेट यहाँ पे भेजा है, एक दो पैकेट इधर आया, दो पैकेट एक यहाँ एक यहाँ. So this is unicast, but multiple unicast. These are the two things very carefully you have to understand. This is multiple unicast. So multicasting versus multiple unicasting, that is given here. Now in unicast routing, each router and domain has table and defines the shortest path tree possible destination. जो possible destination होगा वो एक ही जगह जाएगा, but multicasting दो तीन जगह जाएगा. So now in multicasting routing protocol, there are three protocols basically. That is shortest path tree unicast routing, shortest path tree unicast routing protocol. Here it is showing for multiple. This is also multiple. This is telling unicast routing, but unicast routing, this is a thing, simple thing. Shortest path tree in unicast routing, it is telling, but it applies on name. देखो unicast routing के जैसा ही है, इसीलिए unicast routing नाम में है, but that will apply on मल्टीकास्टिंग. ये अप्लाई होगा मल्टीकास्टिंग में. जैसे देखो R1 का जो टेबल बना है, जो नेटवर्क में जाएगा, सिंपल N1 N2 N3 N4, उसका नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ दिया हुआ है. सिंपल. दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्री प्रोटोकॉल फॉर यूनिकास्ट राउटिंग इन यूनिकास्ट राउटिंग. बट यही चीज मान लो एक बार वेरी केयरफुली. दिस इज वेरी इजी टास्क. ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सिंपल थिंग. नेक्स्ट हॉप क्या होगा इस नेटवर्क में जाने के लिए? नेक्स्ट हॉप क्या होगा? नहीं है, डायरेक्ट पाथ है. इस नेटवर्क में जाने के लिए N2 जाने के लिए पहले R2 देन N2. सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट हॉप इज R2. एवरीवेयर इट इज रिटन. अगर N4 में जाना है देन R2 के थ्रू, R3 के थ्रू ही जाना है, तो R2 के थ्रू ही जाएगा. ये R1 का टेबल है. दिस इज R1 का टेबल है. दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ ट्री. बट multicast routing, each involved router needs to construct shortest path tree for each group. This is the thing. Please try and understand with this group. Unicast routing में, so simply here very carefully, similar this is for unicasting के लिए हम लोग यूज करते थे. बट यही चीज को जब हम अप्लाई करेंगे मल्टीकास्ट में, हाउ दिस इज परफॉर्मिंग, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. यही चीज को अगर सेम प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है, बट ये जो प्रोसेस शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो अब अप्लाई होगा मल्टीकास्टिंग में, तो कैसे अप्लाई होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री फॉर यूनिकास्टिंग इट इज दिस. ये जो नॉर्मल मेथड है, बट इसी मेथड को जब मल्टीकास्टिंग में मैं अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मान लो हम लोग एक ग्रुप बना लिए. अब ये ग्रुप का मतलब क्या है समझो अच्छा से. G1 ग्रुप इज टेकन. G1 जब क्रिएट हो रहा है, एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल टर्मिनल्स. जब क्रिएट हो रहा है, दैट मींस ग्रुप का, इस G1 ग्रुप का कुछ नोड है इस नेटवर्क में, कुछ नोड है इस नेटवर्क में, कुछ नोड है इस नेटवर्क में, कुछ नोड है इस नेटवर्क में. इन दिस वे कुछ नोड है इस नेटवर्क में. दैट मींस G1 का कुछ नोड, सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड. G1 का कुछ नोड यहाँ पे है, कुछ नोड यहाँ पे है, कुछ नोड यहाँ पे है, कुछ नोड यहाँ पे है. दैट इज अ सिंपल थिंग. ओके. एक स्टूडेंट्स का एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. अगेन वेट फॉर सम टाइम. ओके, सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली एक स्टूडेंट्स का जो थर्ड सेम का एग्जाम चल रहा है, तुम लोगों का एक स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा. सो नाउ प्लीज अगेन ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो नाउ ये जो ग्रुप 1 का मतलब अच्छा से समझने का कोशिश करो. ग्रुप 1 का मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप 1 का कुछ नोड्स, ग्रुप 1 इज डिवाइड पार्ट. मान लो इसका यहाँ का कुछ नेटवर्क का कुछ चीज को लेके, इसका कुछ पोर्शन को लेके, इसका कुछ पोर्शन को लेके, इसका कुछ पोर्शन को लेके ग्रुप 1 बना है. गेटिंग इट और नॉट? तो इस तरह से ये नेटवर्क बना दिया गया. सो दैट इज ग्रुप 1.
दैट इज ग्रुप 1। ग्रुप 2 उसी तरह है। ग्रुप 2 जहां जहां लिखा हुआ है, दैट मींस इसका कुछ नोड, इसका कुछ नोड और इसका कुछ नोड लेके ग्रुप 2 क्रिएट किया गया। ग्रुप 3 जहां जहां लिखा हुआ है, इसका कुछ नोड, इसका कुछ नोड को लेके क्रिएट किया गया है। इसका ग्रुप 4, इसका कुछ नोड, इसका कुछ नोड को लेके ग्रुप 4 बनाया गया। सो दैट द सिंपल थिंग हियर इट इज रिटन। सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच क्या बोल रहा है? सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज मल्टीकास्ट अप्रोच। मल्टीकास्ट अप्रोच दैट मींस ग्रुप 1 जो क्रिएट किया गया है, दैट मींस उसमें जो टर्मिनल्स है, मान लो ग्रुप 1 के अंदर है 50 टर्मिनल्स, तो 50 टर्मिनल्स में 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे, सॉरी 100 में से 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है। सो एक डेटा जब यहाँ पे R1 को डेटा सेंड करना होगा, R1 को कहां कहां डेटा सेंड करना होगा, वो यहाँ पे भी डेटा सेंड करेगा, यहाँ पे भी डेटा सेंड। जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ग्रुप 1 से, वो डायरेक्ट कनेक्शन जहां जहां है वहां वहां डेटा सेंड करेगा। ये डायरेक्ट सेंड कर देगा, दैट इज डैश सी। R1 का टेबल में देखो G1 कहां कहां है, एक यहाँ पे है डैश, एक यहाँ पे है R2 यहाँ पे डैश, तो R2 में एक है R4 में। तो डायरेक्ट कनेक्शन जहां जहां है वहां पर वहां डेटा सेंड करेगा। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर इसका जहां जहां डायरेक्ट कनेक्शन है G1 जहां जहां है उसका डेटा सेंड करना है। अब देख जैसे ये G1 ये इसको डेटा सेंड करेगा, ये इसके पास भेजेगा और इसके पास भेजेगा। अगर G1 को डेटा सेंड करना है तो ये इसके पास भेजेगा और इसके पास भेजेगा बाय सीइंग दिस। और इसका काम है इसके पास भेजना और ये डायरेक्ट इसके पास भेजना। दैट इज द वे दिस मल्टीकास्ट हैपेंस। सो एक पाथ, so group 1 first it is group 1 clearly understandable group 1। so जो टेबल में होगा, जो इसका टेबल होगा उसमें जहां जहां डायरेक्ट कनेक्शन है ऑल दिस इंफॉर्मेशन नेक्स्ट होप इज गिवन है। जहां जहां है वो सब जगह का कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहां जहां डायरेक्ट कनेक्शन है, तो अब मान लो ग्रुप 3, इससे ग्रुप 3 कहां कहां कनेक्टेड है, एक यहाँ पे है डायरेक्ट ग्रुप 3, एक R2 के थ्रू है, यहाँ पे ग्रुप 3 है, सी यहाँ ग्रुप 3 है। सो R3 के थ्रू एक ग्रुप 3 है। सो हियर 2 इंफॉर्मेशन इज गिवन है। दैट इज द सिंपल टेक्निक ऑफ सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच। सोर्स बेस्ड ट्री अप्रोच। नाउ द लास्ट वन आई थिंक, so source based tree approach, each router needs to have one shortest path tree for each group। हर एक ग्रुप के लिए वन शॉर्टेस्ट पाथ रखना होगा। हर एक ग्रुप के लिए, ग्रुप जहां जहां प्रेजेंट है उसके लिए एक एक पाथ तुम्हें रखना होगा। बट वन प्रॉब्लम कम्स, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास जब जा रहा है ये डायरेक्ट यहाँ पे भेज रहा है, दैट मीन्स इसका काम हो रहा है। तो डायरेक्ट तुम इसको यहाँ के थ्रू नहीं जा पा रहे, भेज पा रहे। So that's why one concept again comes, that is group shared tree approach। इस group shared tree approach में क्या किया गया, जो मिडिल नेटवर्क है, जैसे मान लो ये दोनों का मिडिल नेटवर्क है, ये दोनों का मिडिल नेटवर्क है, ये मिडिल में नहीं है। अब ये दोनों का मिडिल नेटवर्क है, ये दोनों का मिडिल नेटवर्क है। तो जो मिडिल नेटवर्क है, जो भी मिडिल नेटवर्क होगा उसको एक कनेक्शन कर दिया जाएगा राउटर के थ्रू, एक अलग राउटर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कोर राउटर। देखो अब फायदा क्या हुआ, जो भी मिडिल राउटर है, मिडिल नेटवर्क है, वो सेम वही तरह काम कर रहा है। अगेन सम प्रॉब्लम इज कमिंग।
ओके, नाउ सी, इससे क्या फायदा हो गया, सिंपली ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, बहुत किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे उस पर ध्यान जाना पड़ रहा है, नथिंग एल्स। सो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को मैनेज करना है। ओके, सॉरी फॉर अगेन। नाउ सी हियर, इससे ये जो राउटर जोड़ दिया गया, इससे एक फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ देखो तो, ये डायरेक्ट कनेक्शन हर जगह का हो गया है। डायरेक्ट कनेक्शन हर जगह का हो गया कि इस ग्रुप का भी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। सिंपली देखो, डायरेक्ट इस नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ है, दैट मींस डायरेक्ट ये यहां तक पहुंच जाएगा, इस राउटर तक पहुंच जाएगा, तो यहां तक पहुंच गया। ये यहां तक डायरेक्ट ऐसे भी है, ये यहां तक पहुंच गया डायरेक्ट इसके थ्रू, यहां तक पहुंच गया डायरेक्ट इसके थ्रू, यहां तक पहुंच गया डायरेक्ट इस राउटर के थ्रू। तो डायरेक्ट पहुंच गया इस डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट हो गया, एक एक सिंगल राउटर से कनेक्ट हो गया। तो हर एक जगह का पाथ वो खुद ही सेंड कर सकता है। ये सिंपल, किसी भी नेटवर्क को वो डेटा सेंड करना है, दैट मींस इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को, सिंपली एक ही नेक्स्ट को फॉलो करना पड़ रहा है। दैट इज द बेनिफिट बिकम्स ऑफ दिस ग्रुप शेयर्ड ट्री अप्रोच। तो यहाँ पे एक राउटर जोड़ दिया गया, कोर राउटर, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है हर एक नेटवर्क से। Am I clear? Am I clear this much? So that is the group shared tree approach. वो router has been introduced and वो each राउटर से, इस नेटवर्क से ये जुड़ गया है। तो उसको उसका एक फायदा हो गया कि वो राउटर हर एक नेटवर्क को सिंगल एक ही राउटर के थ्रू डेटा सेंड कर सकता है। तो यहां तक ही रहने दो, मैं देखता हूं किसी किसी का प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक ओके विद यू, समझ में आया है तुम लोगों को? ओके, थैंक यू।